Good morning, dear children. Welcome back to the online classroom of Sri Gokulam Public School, Gurukul. बच्चों, पिछले कक्षा में हम एक डायरी लिखने की विशेषता के बारे में चर्चा की थी. Is it so? How we write a diary? Then now look in your textbook. अपने पुस्तक में देखिए कुछ पन्ने डायरी के. देखिए 5 नवंबर 2016 रविवार रात 10 बजे स्थान कोच्चि के होटल का एक कमरा. So when we write a diary, we should write first of all the date, place, etc. Okay. Then 5 November date. 5 November 2016. 5th November 2016. रविवार Sunday. रात 10 बजे 10 PM. स्थान प्लेस कोच्चि के होटल का एक कमरा, ए रूम इन द होटल कोच्चि. मैं सुबह से ही बेहद खुश था. सारी तैयारियां जल्दी जल्दी समाप्त करके हम सभी शाम 4 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए. मैं सुबह से ही, from the morning, subah morning. So here Aman, this is the name of the boy. From the morning, behad khushda, bahut khush. Behad means bahut. I am very happy in the morning. I was very happy in the morning. सारी तैयारियां जल्दी जल्दी समाप्त करके, जल्दी जल्दी very speedily. I have finished all my preparations. हम सभी शाम 4 बजे in the evening, 4 o'clock in the evening, we reached Indira Gandhi Antarrajyiya Hawai Adde. Hawai Adde means airport. So where we reached Indira Gandhi International Airport. We reached in Indira Gandhi International Airport and वहाँ पर the जांच के लिए, जांच करना means inquiry, सर्च और एनक्वायरी के लिए लंबी कतारें थी. कतारें मीन्स क्यू. देयर वाज ए बिग क्यू, लॉन्ग क्यू फॉर द एनक्वायरी. लगभग 1 घंटे बाद, सो आफ्टर 1 hour's टाइम, हम हवाई जहाज में बैठे. सो आफ्टर हैविंग 1 hour's टाइम वी रीच्ड हवाई जहाज में बैठे. वी सैट इन द फ्लाइट, हवाई जहाज, एरोप्लेन. हवाई जहाज में बैठने का यह मेरा पहला अवसर था. पहला, फर्स्ट. इट वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. अवसर, अपॉर्चुनिटी. सो इट वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द फ्लाइट और इन द एरोप्लेन. शाम 5:30 बजे हवाई जहाज में उड़ान भरी. सो द फ्लाइट began to fly when at 5:30 PM. Sham means evening. So 5:30 PM. The flight started fly. रात 8 बजे हम लोग कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे. And at 8 PM, रात 8 बजे 8 PM, we reached, हम लोग, we people reached where कोच्चि हवाई अड्डे. So we reached कोच्चिन एयरपोर्ट. कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे. We reached in कोच्चि एयरपोर्ट. वहां से टैक्सी लेकर हम सभी होटल पहुंचे. And from कोच्चि we reached were in the hotel. वहां से टैक्सी लेकर we took a taxi and reached in a hotel in कोच्चि. होटल पहुंचे. पहुंचना means reached. पहुंचे, reached. Then next day, 7 November. So 5th November they reached in Kochi and the boy Amar wrote the next day. 6 November. 6th November 2016, सोमवार. सोमवार means Monday. रात 10 बजे, टाइम 10 बजे. स्थान कोच्चि के होटल का कमरा, एक रूम इन कोच्चि. आज सुबह में सबसे पहले जग गया. सबसे पहले
I woke up early in the morning. The first person, that me, myself, woke early in the morning. Sabko jagaya, and I woke up all the other people. Sabhi meri ulsugata dekhkar hasne lage. So all the people began to wonder by seeing my enthusiasm or anxiety or interest about me. फिर हम सभी तैयार होकर गाइड के साथ निकल पड़े. After that, we started our journey with guide. Who is a guide? Guide is a person who helps us in the journey. He shows all the way and instructions, and besides that he guide. Guide means to lead, that type of person. And तैयार होकर गाइड के साथ we निकल पड़े, started where पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की सैर पर. And we what we did, सैर पर means which garden? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार national garden. Okay, so we started our journey where पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान means garden, national garden. उद्यान से कुछ दूरी पर हम टैक्सी छोड़ पैदल चलने लगे. So when we reached the garden, from there we stopped the taxi and get down from it and started paidal. Paidal means on foot. We started by walking and to see the garden. गाइड हमें उद्यान के बारे में बताने लगा. पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है. सो गाइड हमें उद्यान के बारे में बताने लगा. द गाइड स्टार्टेड टू टेल अस अबाउट द गार्डन. गाइड हमें उद्यान के बारे में, गार्डन, उद्यान मीन्स गार्डन के बारे में, अबाउट द गार्डन. द गाइड स्टार्टेड टू टेल अस, बताने लगा. क्या बताने लगा? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है. सो द गाइड स्टार्टेड टू से दिस गार्डन पेरियार वाइल्ड एनिमल सैंक्चुरी, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड एनिमल सैंक्चुरी, जीव अभयारण्य मीन्स सैंक्चुरी. And it was दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है. This sanctuary, which sanctuary? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, and it is भारत का सबसे बड़ा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है. So it is the first, सबसे बड़ा, the greatest or the biggest अभयारण्य, national sanctuary in South India, दक्षिण भारत. So in South India, सबसे बड़ा अभयारण्य क्या है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य. दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य क्या है? यस, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य. यह अभयारण्य हाथियों और बाघों के लिए आरक्षित है. क्या सा विशेषता है इस अभयारण्य का? यह अभयारण्य हाथियों मीन्स एलिफेंट्स, और बाघों टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स के लिए आरक्षित है. रिजर्व्ड फॉर द एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. दिस सैंक्चुरी, दिस पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इज रिजर्व्ड फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर्स. क्लियर? ओके. बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए. सो बाय टॉकिंग, बातें करते करते, वी टॉक्ड, द गाइड टॉक्ड टू अस अबाउट द सैंक्चुरी. बातें करते करते हम उद्यान के बीच बनी झील के पास पहुंच गए. वी रीच्ड, उद्यान के बीच बनी झील, झील मीन्स लेक, the stagnant water, okay, that is lake, that is झील. उद्यान के बीच बनी झील, the made, there was a lake made in the अभयारण्य, in the sanctuary. झील के पास पहुंच गए. So we reached near the lake. वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे. So in that lake
हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे. हाथी elephants. The elephants were जल क्रीड़ा water sports. They were playing in the water, in the lake. कर रहे थे. जल क्रीड़ा means play with water or water sports. They were playing in the water. तभी वहां में एक बाघ पानी पीने आ गया. And at that time, तभी वहां एक बाघ, a tiger, came to drink water. एक बाघ पानी पीने आ गया. To drink the water. बाघ को देखकर सभी हाथी एकजुट होकर खड़े हो गए. So when the elephants saw this tiger, what they did? They एकजुट होकर, they एक साथ, all the elephants together, खड़े हो गए, stand हो गए. They looked at the tiger. But बाघ पानी पीकर चुपचाप वहां से चला गया. But what the tiger did? Yes, बाघ पानी पीकर, after drinking the water, चुपचाप, silently, without making any noise at all, any sound at all, the tiger वहां से चला गया. He went away. The tiger went away from after drinking the water. हम सभी बेहद रोमांचित थे. हम सभी means we people. We people बेहद रोमांचित थे. बहुत thrilled. रोमांचित means thrilled. We became very much thrilled to see this sight. That means the elephants were drinking water in the lake, and there came a tiger, and all the elephants looked at the tiger, and the tiger, after drinking the water, it went away from there. मेरा बाघ को निकट से देखने का यह पहला अवसर दे. So it was my first opportunity to see a tiger very near. It was my first opportunity. निकट means near, pass. मेरा बाघ को निकट से देखने. It was my first opportunity to see a tiger very near. Okay. Then उसका डायरी के बारे में वो क्या क्या लिखा है. Again, please read all these things very well and understand it. And so study all the meanings and do the test paper and post it. Okay. So, धन्यवाद.